और भी आज की लास्ट ईमेल, क्योंकि भूख लग रही है, 11 बज रहे, घर जाना है. Trauma of married life. Assalamu alaikum, sir. I'm a big fan of you. I've been following you since the days you had a Samsung phone for your vlogs. Wow, that was a long time ago. My name is XYZ, age 31, from South Punjab. My wife, who is my cousin, also born and brought up in another city of Punjab. We've been married for 4.5 years. I never wanted to get married with her because of the following reasons. Number one, I knew we had no compatibility and understanding for the 1 year of engagement we had. I tried multiple times to convince my parents and her family that it might not work out for us. No one understood the point. I even tried to involve other relatives, but in vain. Number two, I always wanted to marry a working woman, which she never was, and still she can't get a competitive job. Number three, she's an extremely introvert person with no sense of socializing, makeup, humor, intelligence, or anything. I was forced and emotionally blackmailed by my parents for this marriage. I resisted a lot, but did a mistake back then by agreeing to this marriage. We don't have a healthy relationship, no physical bonding, neither we have any compatibility, communication, or understanding. Many a times I talk to her regarding a relationship, regarding social life, personal life, and professional growth. Seems like she isn't interested in any of it. She says to my face that she cannot change. In 4 years, she never talked to me about family planning. She never takes initiative for anything. When I talk to her regarding changing herself for her own good, if not for me, she doesn't try to change herself. Her parents have already passed away. Siblings are not supportive. She's all on her own. I no longer want to live with her. I am already having extramarital affairs from the past 2 years. I was not like this before my marriage, and I have lost interest in extramarital affairs as well. I try to make this marriage work, but I can't suffer anymore, or maybe I just don't want to. I'm fed up with all this. I just don't like her. I take anti-anxiety medicine, which was prescribed to me by a psychiatrist. I have seen psychiatrists and psychologists as well. I've already discussed all of this with my parents. They don't want me to leave her at any cost. Rather, they ask me to go for second marriage. My parents are more concerned about their image in society. What will people say? Who will remarry her? Blah, blah, blah. I'm financially independent. I can easily live independently with another wife. My sole point is, why should I keep her to my name if I'm not going to live with her and marry someone else? I mean, I'll have my own family and children. Why should I be responsible for keeping her like this? I talked all this with her as well, but she doesn't want to leave me for whatever reason. I don't want to spend the rest of my life in misery. What should I do? I'm so sorry to hear this. So एक साहब हैं, जैसा कि आपने सुना, 31 साल उम्र है, साउथ पंजाब में रहते हैं, कज़न से उनकी शादी हुई और इन्होंने शुरू में ही मंगनी के पहले साल में ही अंदाज़ा हो गया था कि इनकी इनसे नहीं चल पाएगी, मगर फैमिली के प्रेशर में. और देखें मर्दों के साथ भी अब्यूज़ होता ही है सोसाइटी में. वैसे ठीक है, बहुत सारी प्रिविलेज हैं मर्द की, लेकिन अब वही वाली बात है ना, ख़ानदान का नाम बाप घर से निकाल देगा. मुझे इस पर याद आई है एक किस्सा. मैं एक बार लाहौर में था, लिबर्टी मार्केट के पास. मैं अपने होटल से वॉक करता हुआ गया था लिबर्टी चौक तक, आई थिंक सिगरेट लेने के लिए. पुरानी बात है, ठीक है. और ये बात चूँकि 4 साल पुरानी, सो आई वॉजंट एज फेमस एज आई एम नाउ, तो चल फिर लिया करता था मैं, कोई मसला नहीं होता था इतना. तो मैं सिगरेट लेके वापस आ रहा था, तो ऑन कमिंग ट्रैफिक था, तो एक गाड़ी आई, वो उसने मुझे क्रॉस किया क्योंकि मैं होटल की तरफ जा रहा था, और फिर वो गाड़ी उसने साइड पे लगाई और वो भागा पीछे आया. उसने मुझे आवाज़ दी कि आप जुनैद भाई हैं. मैंने जी, और वो रोने लग गया. ही लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, और मैं डर गया. अब ज़ाहिर है, पहली, चूँकि मैं कराची से हूँ, पहली सोच कहाँ, ये मुझे लूटने तो नहीं आया. फिर मैंने उसका हुलिया देखा, मतलब हुलिया तो सही है, गाड़ी भी अच्छी है, बट देन लोग बड़ी गाड़ियों में भी डकैतियाँ मारते हैं. अब मैंने बोला यार ये गेम क्या है, कोई स्कैम तो नहीं होने वाला मेरे साथ. तो रोने लग गया, कह रहा है मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप मुझे 5 मिनट दे दें. मैंने बोला ठीक है. अब मैं उसकी बात भी सुन रहा हूँ, बट मैं चारों तरफ, क्योंकि यार कराची का हो ना, हमारी साइकोसिस थोड़ा सा हमारा इसी तरह का हुआ है. तो मैं आगे पीछे देखता रहा कि इसका पार्टनर कहाँ है जो लूटने आएगा,
یا یہ کوئی مجھے بے ہوش کرنے آئے گا. اور پھر میں اس کی گاڑی سے دور کھڑا تھا, مطلب مجھے کوئی پیچھے سے آ کے سونگا کے, عجیب سا پیرانویا تھا. خیر پھر وہ 5 منٹ بعد مجھے لگا کہ نہیں یار یہ جینون کیس ہے. کیس یہ تھا کہ وہ بچہ تھا لائر, ٹھیک ہے, پڑھ لکھ کے وہ لائر بن گیا تھا, بٹ ظاہر لا میں وہ اسٹیج پہ نہیں تھا جہاں اندھی کمائی ہو. تو وہ کہیں شادی کرنا چاہتا تھا, اور اس کے والدین جو تھے وہ انڈسٹریلسٹ تھے, ٹھیک ہے, فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا پرہیپس, یا گجرانوالہ, ون آف دی سٹیز. اور باپ نے سیدھا سیدھا بولا ہوا تھا کہ بیٹا اگر اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے دفع ہو جائے اس گھر سے, یہ گاڑی بھی ادھر دے اور جا اپنی لائری کر, اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اب نیچرلی اس نے ٹھیک ہے لا تو پڑھا اپنے شوق سے, بٹ انسان کی ایک پروجیکشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو یہ میرا باپ کا کاروبار ہے, اس کو میں نے رن کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ وہ. تو ظاہر ہی ڈنٹ وانٹ ٹو لیٹ گو آف دیٹ لائف اسٹائل ایز ویل. مگر وہ کہہ رہا تھا کہ یار وہ بس ذات پات کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں وہ کون سی ذات تھے, راجپوت تھے, جٹ تھے, آئی ڈونٹ ریمبر. تو میں یار سوچ رہا, میں وہاں کھڑا سوچ رہا ہوں, میرے 2018-19 کی بات ہے. میں نے یار ابھی بھی یہ مسئلے ہیں ذات پات والے, یار ہم فلانے ہیں تو وہ آرائی ہیں تو وہ یہ ہیں تو وہ ہیں, فلانے کی لڑکی ہمارے گھر کیسے آئے گی. تو وہ بچہ رو رہا تھا, آنسوؤں سے رو رہا تھا. میں نے بولا یار کوئی رشی نہ لگ جائے یہاں پہ کہ میں کیا کروں, میں آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف دس دیٹ, اینڈ آئی انڈرسٹوڈ ہز پین ایز ویل. تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو دیٹ کڈ. مجھے نہیں یاد پڑتا اس نے میرا نمبر لیا تھا یا نہیں لیا تھا, اس نے بس پوچھا تھا میں کروں گا. اینڈ دین وی اینڈڈ اپ اسٹینڈنگ دیر فار لائک 45 minutes. اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ایکسکیوز مائی سیلف بیکاز اور بھی کام ہوتے ہیں, اٹ واز کمپلیٹلی ان پلانڈ. میں نے اس کو کاؤنسلنگ جتنی کر سکتا تھا میں نے کی. میں نے بولا بھائی دیکھو یو ہیو ٹو پک اے پوائزن, ٹھیک ہے نا, ایک کمفرٹ کا پوائزن ہے اور ایک طرح اسٹرگل ہے زیرو سے, کیونکہ پھر باپ نے تو تمہیں آگ کر دینا ہے. سو اف یو ریئلی وانٹ دس پرسن اینڈ اف دس پرسن بلیوز کہ یو کین اسٹل میک اٹ, اینڈ وہ اس طرح نہیں دیکھ رہی کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس گھر کی بہو بنوں گی تو یہ آسائشیں بھی مجھے ملیں گی. سو اف یو گائز آر ولنگ ٹو پٹ اپ دا ورک, کیونکہ پھر 20 سال لگنا ہے. پاکستان میں گروتھ بہت سلو ہے, پھر پاویں پوری زندگی لگ جائے گی سیٹ ہوتے ہوتے, تو دیکھ لو. تو وہ کنفیوز ہی تھا بیچارہ. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, آئی ریئلی وش ہی فاؤنڈ سم سولوشن. مجھے اکثر وہ بچہ یاد آتا ہے یار, وہ جس طرح ہی فکنگ بروک ڈاؤن مین, لائک اے گرون ایس مین. ٹھیک ہے قبرستان میں سمجھ آتا ہے آپ اپنے پیارے کو دفن کر رہے ہو, پیپل بریک ڈاؤن, یا کوئی میت ہو یا کوئی اور ہو وغیرہ وغیرہ, بٹ لائک روڈ پہ ایک بندہ آیا, پہلے ہی کنفرمڈ اف آئی ایم دا سیم گائے, اینڈ دین ہی جسٹ ہگڈ می اینڈ اسٹارٹ کرائنگ, اینڈ آئی ایم لائک میں یوں کھڑا ہوں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار. پیپل آر ویری ویری ہیلپ لیس. سو آئی انڈرسٹوڈ ہز پین. اور ان کی بھی ای میل دیکھ کے نا مجھے ذہن میں وہی آیا, مجبور تھا, یہ بھی مجبور تھے, پیرنٹس نے بلیک میل کیا. اب اپنے نام یار مطلب یار یہ کون ہے, کیا اب لوگ امبانی ہو, گولڈ اسمتھس ہو, کیا نام ہے یار, کیا ہو تم لوگ بھائی جو ہمارا خاندان میں نام نیچے ہو جائے گا. تو نام کیا ہی کیا ہے زندگی میں, کوئی نوبیل پیس پرائز ملا ہے, آسکر وننگ ہو, کیا ہو, ایسی کون سی اچیومنٹ ہے جو نام ڈوب نہیں سکتا, اور کیسے ڈوب رہا ہے یہ. اب وہ اگین آپ نے ایک چیز اچھی کی کہ آپ نے پہلے سال میں سمجھ لی تھی کہ وہ نہیں ہے. اب نارمل کیس میں اگر وہ نارمل پیرنٹس ہوتے یا نارمل سچویشن ہوتی, نارمل انوائرمنٹ ہوتا آپ کا, تو وہاں پھر اس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا کہ یار ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو رہی. بٹ پھر یہاں پہ یہ کہ شادی ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اوکے ہمارے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے سیکس لیس ہیں کہ جیسی سیکس کریں گے تو دوستی بھی ہو جائے گی, کہ ہاں یار یہ اچھا ہے, ٹھیک ہے ہماری پرسنالٹیز نہیں ملتی, بٹ یار اس میں بڑا مزہ آیا, چلو اوکے ٹھیک ہے اب ہم صحیح رہتے ہیں. لائک نہیں ہوتا یار, نہیں کرتے وائب لوگ. تو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے وائب, تو کرا دی اس کی. تو نارملی یہ کہ وہ بیک آؤٹ ہو جاتے کہ یار کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, بٹ یہاں پہ جی نہیں جی کرو زبردستی کے لیگو کے 2 ٹیڑھے میڑے پیس جو کہ نہیں میچ ہوتے زبردستی جوڑنا ہے, اب ریپروڈیوس کر کے دکھاؤ. اور اب ملٹیپلائی دس بائی 20 ملین جوڑے اس طرح لگے ہوئے, کیا ہی پروڈکٹ نکلے گی. اور پھر جو پروڈکٹ نکلے گی وہ کیا ہی ملک بنائے گی, وہ اپنے ہی مسئلوں میں ٹوسٹڈ رہے گی. آپ سمجھ آئے میری بات. اب یہ روٹ کاز ہے, یہ روٹ پرابلم یہاں سے اس کو کرمنلائز کرنا ہے, زبردستی کی شادیوں کو کرمنلائز کرنا ہے, کیونکہ اٹ لیڈس ٹو فردر ریٹارڈیشن.
एज इन के लाइक फिर वो एक अनप्रोडक्टिव हाउस होल्ड है, फिर वो आप पे बोझ है. अब ये 31 साल का है, ऑलरेडी एंटी एंग्जाइटी पिल्स ले रहा है. नॉर्मल हालात में होता, सपोर्टिव होता, इकोनॉमी रन करता, अपने घर की इकोनॉमी अच्छी करता, कोई स्टार्टअप करता, बिजनेस करता, मुल्क में कोई इसका कोई कंट्रीब्यूशन होती. अब क्या जी गोलियां खा रहा है. वाई? बिकॉज दो लोग, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है. बट यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं जी, बड़ों की बात माननी है. यार क्या बेवकूफ़ लोग बड़े नहीं होते? क्या जाहिल लोग बड़े नहीं होते? बड़े हैं तो क्या है यार, अबे तो पता नहीं क्या बड़ा है तो उसकी बात मानो. यही हाल कर दिया यार इन लोगों ने. तो अब आप देख लें, अब उसकी कोई कंपैटिबिलिटी. अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि मुझे एक वर्किंग वूमेन चाहिए थी, समवन विद अ ड्राइव बेसिकली. अब जाहिर है वो उस तरह के शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे कि बीवी की कमाई खानी थी, लेकिन बाय दैट अ लॉट ऑफ कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि यार घर बैठ के टाइम ना वेस्ट करे. आजकल घरों में मेड्स वेड्स होती हैं, तो वो पुराने दौर थे, अम्मियाँ जो लगी होती थी, पोछा भी खुद लगा रही हैं, ये कर रही हैं. आजकल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में तो हाउस हेल्प होती है, कोई इतना काम होता नहीं है. अब तो वैक्यूम भी आ गया, अब झाड़ू वाड़ू नहीं होता, अब समझ रहे ना. तो अब वो काम भी नहीं है. तो कुछ लोगों को ना नहीं आती वाइब ऐसे लोगों से कि यार क्या घर में बैठी हुई सारा दिन. और आपने लिखा कि जी नो मेकअप, और मतलब बेसिकली अपने ऊपर किसी किस्म की भी मेहनत नहीं. अब रही बात मेकअप की, अब ज़ाहिर है आपका पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें कोई गलत बात नहीं है टू डिमांड योर पार्टनर टू लुक गुड. आप अगर अपने पार्टनर से ये डिमांड नहीं कर पाएंगे, और ये इट गोज़ बोथ वेज. तोंदे भी नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे अपनी भी तोंद नहीं पसंद. मैं लाइक आई ट्राई टू वर्क आउट इन एवरीथिंग, बट जिस दिन मेरी बीवी ने सख्ती से अगर शिकायत की, आई बी लाइक आई एम सॉरी, आई नीड टू वर्क ऑन इट. ऐसे ही होता है ना. तो अच्छा, दूसरा सोशलाइजिंग भी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल जो है ना, ह्यूमर भी नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है. यार एक मैट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बच्चों जो मेरी बात सुन लो, अगर मीम समझ नहीं आते ना आपकी टू बी को, ऑफ सीन है यार. आई लाइक मेरे लिए तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एंड आई एम ग्लैड के यू नो ह्यूमर इज़ देयर. वरना यार बहुत ड्राई लाइफ होती है, बहुत ड्राई. फिर उनको हर ह्यूमर अटैक लगता है, हर जोक अटैक लगता है. व्हाट डिड यू मीन बाय दिस? अबे यार ये नहीं था भाई, सिर्फ मीम है. फिर हर मीम समझाना पड़ता है. फिर आप मीम भेजना छोड़ देते हो. फिर आप कहते हो यार भाड़ में वाले ये मीम भेजूंगा, लड़ाई हो जाएगी, किसी और को भेज देता हूँ. फिर कहीं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, फिर वही जो पिछली ईमेल थी ये हो जाता है. सो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब ये चीज़ें कैसे बदलती हैं? इफ़ यू टॉक. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो द पर्सन बिफोर यू साइन द पेपर्स. अब 4.5 साल हो गए हैं, उनमें कोई किसी किस्म की ड्राइव नहीं है, ना फैमिली प्लानिंग की, ना कुछ. बस ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, बस ज़िंदगी में बहना है. कुछ लोगों को ज़िंदगी गुजार रही होती है, कुछ लोग ज़िंदगी गुजारते हैं मीनिंगफुल. अब ये बह रही हैं, बस रोज़ाना उठे, नाश्ता किया, अनइंस्पायर्ड, कोई स्पार्क नहीं है, कुछ करना नहीं है ज़िंदगी में. अच्छा मैं ये देखें, सब ने स्टार्टअप खोल के $1 बिलियन नहीं बनाने, बट कुछ ना कुछ तो स्पार्क होता है ना इंसान के अंदर कि यार मैंने एक फैमिली रेस करनी है, मैं बच्चे होंगे तो मैं बच्चों के ये स्कूल में जाएंगे, मैं चाहूँगी कि उनके ये मामलात हो, इस तरह वगैरह वगैरह, लाइक यू नो एक ट्रॉफी हो मेरी, वगैरह वगैरह. तो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट और चारपाई के नीचे छुपे रहना, कोई मेहमान आए तो उधर भागना. कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ज़िंदगी में. अब आई गेट इट, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट फॉर अ लॉट ऑफ रीजन. उनको घर में सारी ज़िंदगी अंडरमाइन किया था, तुम चुप करके बैठो, तुम्हें बड़ा पता है, बड़ों के आगे नहीं बोलते, चुप 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 कर करके उनको चारपाइयों के नीचे घुसेड़ देते हैं. अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ बैड पेरेंटिंग. तो शेम का एलिमेंट, अब इट्स अ साइकिल मैन, इट्स अ साइकिल, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. अब आपके पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि जी दूसरी शादी कर लो, और आपकी बात सही है. देखें आपका पूरा राइट है, एक हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, फिज़िकली हेल्दी ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का हक है. इसमें आप बिल्कुल रॉन्ग नहीं हो. 31 कोई एज नहीं होती यार, अभी तो आप भरपूर हो जवानी से. लाइक यू हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंजॉय करना है यार, फ्रेंडशिप एंजॉय करनी है आपने. इट्स अ ब्यूटी ऑफ कंपेनियनशिप दैट यू नो यू हैव अ कॉमन गोल, टारगेट सेट करने हैं, हंसना है, खेलना है, एंजॉय करना है, घूमना है, खाना पीना है, राइट. तो आपका पूरा हक है. और ये बात बिल्कुल सही कि मैं इस सिचुएशन को क्यों ड्रैग करूं. माँ बाप कह रहे हैं जी दूसरी कर लो, लेकिन इसको नहीं छोड़ना क्योंकि उनका नाम ख़राब होगा. बोलो तो फिर एक काम करें, ये आप रखें, आप इनको, बट हाँ वो भी गलत है ना, आपके नाम पे क्यों है वो,
या तो वो उसका खर्चा वर्चा है वही पालें, आप भले अलग हो जाएं. बट अगेन दैट्स ऑल्सो नॉट द राइट थिंग टू डू. अगेन शी हैज़ टू गो इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद हर. ऐसा भी नहीं है क्योंकि पेरेंट्स आपके आज हैं, कल अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, आगे क्या होगा फिर, और वो कब तक इस तरह रहेंगी, तो उनको भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में. तो अगर आप को वो समझ नहीं आ रही है और उसके बावजूद वो कोई एफर्ट नहीं डाल रही, दैट मीन शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू इक्वली, तो उनकी मिजरी ख़त्म करें आप. दोनों बिला वजह मिजरेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं. अब उनके सिबलिंग सपोर्टिव नहीं है, दैट्स हर प्रॉब्लम मैन, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है. अगर उनके भाई बहन नहीं है सपोर्टिव, आपने या तो ये होता ना कि आपने खुद ही शौक में की होती और बाद में आपको समझ नहीं आई, तो थोड़ा सा ओनस आपके ऊपर भी होता या थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी थी. लेकिन इस सूरत हाल में चूँकि आप शुरू से बावाज़ बुलंद अलार्म बजा रहे थे कि भाई ये नहीं है मेरे लिए कंपैटिबल, उसके बावजूद आपको डाल दिया गया, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ओनस नहीं आता, तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है. तो अगर उनके भाई बहन नहीं उनको एक्सेप्ट करते, उनके आपने बोला वालदेन नहीं है, तो आपके वालदेन पाल ले, कुछ भी कर लें, बट यू नीड टू फिनिश दिस ताकि आपका कोई ना रहे. क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने अपनी नई फैमिली बनानी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो फिर एक फिगर ज़िंदगी में सामने तो रहेगा ना, तो वो ऑकवर्डनेस ही आती है उससे. एंड देन फिर योर अनदर वाइफ विल नॉट बी हैप्पी. एंड इट्स अ गुड थिंग आपने जैसे बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपने शुरू कर दी, बिकॉज क्लियरली यू आर अनयूज्ड इन दिस मैरिज. बट ये भी आपने अच्छा किया कि यू रियलाइज कि दैट्स नॉट द वे टू बी एंड यू नीड थिंग्स प्रॉपरली डन एंड राइटफुली सो. क्या ज़रूरत है मुंह मारने की यार, जब आप एक चीज़ प्रॉपरली चीज़ कर सकते हो तो देयर इज़ नो रीज़न टू डू दैट. अच्छी बात भी नहीं है. प्रॉपर उसमें एक धारे में लेकर आओ एक रिलेशनशिप को, अच्छी बात है, बरकत भी होती है उसमें. तो ये बिल्कुल सही है, आपका बजा हक है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद हर इन एनी वे, तो ये आपका बिल्कुल हक है, और उनका भी इतना ही हक होता है अगर वो खुश नहीं है तो बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं. एंड आई एम विद यू ऑन दिस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लें वो सबके लिए बेहतर हो. बट जो सुन रहे हैं, अगेन इस शो का मकसद ये है, सिर्फ लोगों की कहानी, लोगों के घरों में झांकना, गॉसिप नहीं है. इस शो का मकसद है दूसरे की गलती से सीखना, या दूसरे के साथ अगर कुछ हो गया तो उससे सीखना और अपनी ज़िंदगी में सही एक्शन लेना. वरना याद करना यार वो जुनैद भाई ने कहानी सुनाई थी, वो ना हो जाए मेरे साथ. यू गेट इट, दैट्स द होल आइडिया. प्रिवेंशन करनी है हमने इन सारी कबाहतों की और ये मुसीबतों की और ये प्रॉब्लम्स की प्रिवेंशन करनी है. ये तो हो गया, ठीक है, मगर आगे ना हो. दैट्स वाई दिस शो एग्जिस्ट. मुझे ये लोगों के घरों में कैमरा नहीं घुसाने का शौक, क्या है ज़रा गॉसिप सुनते हैं, किसकी बीवी का किससे चक्कर है, या किसको जो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये मकसद नहीं है. हम यहाँ मज़े नहीं ले रहे, राइट. द आइडिया इज़ प्रिवेंशन, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि आप लोग सीखें और दूसरों की गलती से सीखें और अंडरस्टैंड करें. एंड ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ एम्पैथी इनसाइड यू कि यार हर किसी को लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो या सबसे बड़ा विलन है और सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें और बुरी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं. सो लाइक दिस इज़ अ विंडो टू यू टू रियलाइज कि अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट वर्स देन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, राइट. तो इंसान को ज़ाहिर है थोड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि मतलब अंदाज़ा जब आपको हो कि यार मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ट्राई टू ओवरकम दोज एज वेल, और दूसरों के लिए दुआ भी करें, ठीक है ना. अगेन ये चस्के लेने वाला शो नहीं है, ये प्रिवेंशन वाला शो है. और देखें ज़रा अंदाज़ा करें कि लोगों की क्या क्या स्टोरीज़ होती हैं, लोग किस किस्म के पेन में गुजर रहे होते हैं और किस किस्म के कर्ब में रह रहे होते हैं. एंड अननेसेसरीली बस क्या जी, किसी की मूंछ ऊपर रहे, किसी की पकड़ ऊपर रहे, किसी की टांग ऊंची रहे, किसी का नाम बना रहे, पता नहीं केड़े नाम है यार, केड़ा तू एलॉन मस्क है भाई, तेरा नाम ख़राब होगा. कोई अचीवमेंट है नहीं ज़िंदगी में, पता नहीं कौन से नाम है वो भरे पड़े हमारे मुल्क में ऐसे नाम. मुल्क की हालत देख लो, नाम सारे ऊंचे हैं जी, हम ये हैं हम वो हैं, परफॉर्मेंस किसी की भी कुछ नहीं है, भूखा मर रहा है मुल्क. खैर, अगर आपने ये क्लिप एंजॉय की तो पूरी वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल आस्क गंजी स्वाय को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपके कोई सवालात हो जिनके आप चाहते हैं मैं जवाब दूं तो मुझे जरूर भेजिएगा. मुझे आपके सवालात का शिद्दत से इंतजार रहेगा. आस्क गंजी स्वाय को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बहुत शुक्रिया.